السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ دیکھ رہے جاہل، تمہاری اوقات یہی ہے ناچ گانا کرنا، ٹھیک ہے؟ اور سور تو جتنے ویڈیو ڈال دیا نا اس میں یوٹیوب پہ، تیرے سور بھر دوں گا بھوسڑی کے، ایک سے ایک ویڈیو تمہیں ڈال کے دوں گا، تمہارے بڑیلوی سوروں کی۔ گنڈیوں سدھر جاؤ، سالو چوتیوں کو ملا کڑیا سور، تو ایک نمبر کا سالہ فرعون کا اولاد ہے مادر چوت۔ نمسکار بیٹے، ہندو کو نمسکار کیا جاتا، ٹھیک ہے؟ اگر تو اپنے آپ کو کہتا نا کہ بہت بڑا جو 30 مار کھاں ہے، تو مجھ سے ایک بار کال کر لے، تو مجھ سے بات کر لے، جب تو یہ بتاؤں گا تو کتنا 30 مار کھاں ہے، ٹھیک ہے؟ تیرے اندر خباثت بھرا ہوا جاہل آدمی ہے، تو جاہل، ایک نمبر کا جاہل ہے۔ اور یہ بتا، یہ تیرے باپ لوگ جو ڈانس کر رہے ہیں، اسے کیا کہے گا سالے؟ عاشق رسول کہے گا، یہ گستاخ رسول کہے گا؟ جاہل، پہلے اس کی جواب دیے، ٹھیک ہے نا؟ اے خبیث، جب میں تجھے کال کرتا ہوں سسری کے بات کیوں نہیں کرتا بے؟ ہاں ڈھور کتے، پہلے یہ بتا تو جھوٹ بولتا ہے بہن چو، تو کہہ رہا کاشی پور رامپور، سالے رامپور ضلع میں کاشی پور ہے بھی نہیں، میں رامپور ہی رہتا ہوں بھوسڑی کے۔ لیجیے جناب حضرات، ان لوگوں میں اب اسی طرح کے لوگ رہ گئے ہیں، اسی طرح کے عالم رہ گئے ہیں۔ یہی ہے ان کی اوقات، یہی ہے ان کی اصلیت، یہی جماعتوں میں ان کو سکھایا جاتا ہے، یہی مدرسوں میں ان کو سکھایا جاتا ہے۔ کہنے کو تو میں بھی بہت کچھ اس کو کہہ سکتا تھا، پر میں نے نہیں کہا، میں نے برداشت کیا، صبر کیا۔ مگر آپ حضرات ان لوگوں کی حقیقت کو جان لیں، ان لوگوں سے بچیں، تبدیلی جماعت میں اپنے بچوں کو نہ بھیجیں، تبدیلی جماعت کے مدرسوں میں نہ بھیجیں، ورنہ آپ کے بچوں کا ایمان و عقیدہ بگڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ آپ خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم جی کون بھائی جان؟ بھائی، میں طارق بول رہا ہوں۔ طارق، ہاں اچھا، آپ کا مسلک؟ ہاں آپ کا مسلک؟ مطلب مسلک آپ کی جماعت کا نام؟ بھائی، آپ یہ کون سی بھاشا نکالے ہیں؟ کوئی کسی سے بھی فون کرتے تو آپ جماعت پوچھتے ہیں، کیا بات ہے؟ چلیے کال کٹ کر دیجیے بھائی جان، ذرا میں بزی ہوں، کہیں بات کر رہا ہوں۔ ارے بھائی، تھوڑا بتیا دیجیے ہم سے تھوڑا۔ مت بتائیے یار، کیا فائدہ؟ دیکھیے دیکھ رہے ہیں آپ یوٹیوب پہ بہت زیادہ فیمس ہو رہے ہیں۔ نہیں، مجھے فیمس ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے بھائی۔ نہیں بھائی، آپ تو بہت بڑے آدمی ہو رہے ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ آپ تو ایسے لگ رہے ہیں کہ وہ فاضل بریلوی صاحب کو فیل کر دیں گے۔ بہرحال آپ کو کیا پریشانی ہے؟ پریشانی بھائی ہم کو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیوں کال کیا یار بھائی جان؟ کیوں پریشان ہو رہے ہیں رات میں؟ جس حال میں رکھا ہے صحیح ہوں، لیکن آپ مفتی ہیں، مولوی ہیں، کون ہے؟ جی، میں تو قاری صاحب ہوں بھائی۔ قاری صاحب ہیں؟ ہاں۔ اچھا، تو مولوی بھی ہے یا نہیں؟ نہیں، مولوی صاحب نہیں ہوں، مولوی نہیں پڑھا ہوں۔ اچھا، سوال کریں گے کیا؟ نہیں جناب۔ نہیں، ویسے تو لگتا سوال کریں گے آپ کچھ۔ کیا سوال کریں؟ تمہارے مولوی مفتی بھی جواب نہیں دیتے ہیں، کیا کریں؟ دیکھیے بھائی جی، میں آپ سے فون لگایا ہوں کچھ فالتو بکنے کے لیے نہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہاں، میں آپ سے صرف یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بھائی آپ مسئلہ لے کے کیا کریں گے بتائیے؟ میں تو کچھ بھی نہیں کروں گا، پوچھ رہا ہوں، بات کرنے میں مزہ آئے گا، کھل کے بات ہوگی۔
मसला क्या, आपको क्या तकलीफ है क्या कि मसला? आपको क्या तकलीफ है? आपने मुझे रात के 11 बजे कॉल किया है। मुझे कोई तकलीफ नहीं भाई। फिर मैं आपकी तकलीफ देख के यूट्यूब में, इसीलिए मैं आपको कॉल किया। देखिए भाई को कौन तकलीफ है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ मुझे रात के 11 बजे मेरी तकलीफ पूछ रहे हैं। हाँ भाई, अरे मुस्लिम भाई हैं, पूछ सकते हैं ना तकलीफ। तो आपने तो अपनी पहचान बताई नहीं जनाब। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुनाफिक अपनी पहचान को छुपाएगा। अच्छा, तो आप अपनी पहचान बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ ना, मुस्लिम हूँ मैं। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। अच्छा, जो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने आए थे वो कौन लोग थे? मस्जिद में? हाँ, जो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने आए थे, मेरे आका हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो भगाया था, वो कौन लोग थे? वो भाई देखो देखो, नमाज पढ़ने वाले थे ना, टोपी वाले थे, दाढ़ी वाले थे। हाँ हाँ हाँ। और हुजूर के पीछे के नमाजी थे। आज के किसी इमाम के पीछे के नमाजी नहीं थे, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने वाले नमाजी थे। हाँ हाँ। हाँ, क्यों हुजूर ने भगाया? क्या बोल रहे? चलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, कॉल काट दीजिए यार, परेशान मत हुई आप। ठीक है, कॉल काट दो। अरे भाई थोड़ा सा हमको बता दीजिए आप। अच्छा, आप कारी साहब है ना? हाँ जी कारी साहब, थोड़ा बहुत इल्म है आपको अच्छा, देवबंदी जमात से ताल्लुक रखते हैं या अहले हदीस? नहीं भाई, मैं तो देवबंदी से ही हूँ। देवबंदी से है? हाँ। अच्छा, सहारनपुर से है या कहीं दूसरी जगह से? नहीं, मैं सहारनपुर से नहीं हूँ, मैं बिहार से हूँ। बिहार कौन सी जगह? बिहार अररिया। अररिया जिला से है? हाँ। अच्छा जनाब। अभी फिलहाल हैदराबाद में हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, वो बरेलवी की मस्जिद में अभी रहता हूँ मैं। मदरसा है छोटा सा, मंदिर हाट जानते हैं हैदराबाद में? बरेलवियों की मस्जिद में आप नमाज पढ़ाते हैं? हाँ। तकैया अपनाते होंगे जरूर। हाँ, तकैया अपना रहे होंगे, तकैया। बरेलवी बन के पढ़ा रहे हैं कि देवबंदी पढ़ के बन के? अरे भाई वो जिस तरीके से चल रहे हैं, क्या करेंगे आप? नहीं नहीं नहीं, आप बता दीजिए मुझे आप, क्योंकि देवबंदी अगर तकैया ना अपनाए तो बरेलवी मस्जिद में रुक ही नहीं सकता, क्योंकि वो पिछवाड़े पे लात मार के भगा देते हैं। भगाते नहीं भाई, वो जो जिम्मेदार है मस्जिद के। हाँ, तो वो तुम्हारा बदअकीदा होगा। जो जिम्मेदार है ना वो बदअकीदा होगा। जिस तरीके से वो चला रहे हैं, चल रहे हैं, हम क्या करेंगे? खैर, आप मेरी अपने आपके मोहल्ले के जो मस्जिद के लोग हैं, ठीक है, जो नमाजी हैं, जो मुक्तदी हैं, हाँ हाँ, अपने उस शख्स को छोड़ के जो मुतवल्ली है, हाँ। दूसरे लोगों से बात कराइएगा। इंशाल्लाह मैं बात करूंगा और बोलूंगा कि ये इमाम जो है ये देवबंदी है। क्या आप देवबंदी अकायद से वाकिफ हैं या नहीं? भाई मैं बता रहा हूँ। हाँ। मेरे यहाँ पे मौलाना है, ठीक है, वो 30 साल से है ना, 30 साल से बरेली की मस्जिद में इमामत कर रहे हैं। देवबंदी है? हाँ, देवबंदी है। अच्छा, तो वो नाम के बरेल, खाली नाम के बरेलवी है क्या हकीकत के बरेलवी है? भाई अगर आपको यकीन नहीं है ना, हाँ, तो दिन में कॉल कीजिए, मैं आपको वीडियो कॉलिंग पूरी हर चीज दिखाऊंगा आपको। मैं कॉल किसी को नहीं करता हूँ, अगर आपको कॉल करनी है तो आप कर दीजिएगा, ठीक है, मुझे दिखाइएगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो, अगर यकीन है तो कोई बात नहीं है, अगर यकीन नहीं। मगर सुन्नी हनफी बरेलवी किसी बदमज़हब बदअक़ीदे को इमाम नहीं बनाते। और मैं लोगों को ये पैगाम भी दूंगा आपके जरिए से कि वहाबी देवबंदी जो है तकैया करके, तकैया अपना कर सुन्नियों की मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं। इसी तरह हमारे एक गांव का इमाम सुन्नियों की मस्जिद में इमामत कर रहा था, तकैया अपना के बता रहा था कि मैं सुन्नी हूँ, मगर जब उसका पता चला कि ये सुन्नी नहीं देवबंदी है तो उसको हटा दिया मस्जिद से, जब तक सुन्नी बन के इमामत करता रहा। अच्छा भाई, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, ठीक है? मुझसे सवाल मत कीजिए जनाब, सवाल करना है तो आलिमों से कीजिए। एक ही सवाल कर रहा हूँ। तो एक सवाल आप करोगे, एक सवाल मैं करूंगा। हाँ ठीक है भाई, चलिएगा, ठीक है। ठीक है भाई, आप ये जो 12 वफात मना रहे हैं, हेलो जी, बोले बोले। ये 12 वफात जो मना रहे हैं, ये कौन सी हदीस में है और कौन सी कुरान के कौन से आयत है, बताइए भाई कुरान के। अच्छा, ये 12 वफात है या 12 रबीउल अव्वल है? मतलब 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन्नबी। ईद मिलादुन्नबी है। हाँ, आपने तो 12 वफात बोला है।
हाँ मतलब वही ईद मिलादुन्नबी जो बना रहे हैं आप, अच्छा, ये कौन सी हदीस में है भाई? कौन से हदीस में है? हाँ देखिए भाई, हर चीज, एक मिनट में हम ऐसे बात कर रहा हूँ कि आपको ऐसा मिसाल दीजिए कि जिसे बोतल के ढक्कन पे लग जाए बस। हाँ हाँ ठीक है, ऐसी मिसाल देता हूँ। हाँ ठीक है, ऐसे मिसाल अच्छा। दीजिए हमको, ऐसे अच्छा, हदीस अच्छा। बताइए बस। तो इस पर आपका एतराज क्या है कि अगर ये किसी हदीस में नहीं है, ठीक है, और हमने इसको किया, हाँ तो इस पर आपका क्या एतराज है? थोड़ा उसका खुलासा कर दें, इंशाल्लाह बात करने में मजा आएगा। इसमें हमको इसे एतराज ये है कि जो बड़े बड़े मौलाना है ना जी, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहे हैं कि ढोल बजाना हराम है। हुजूर सल्लल्लाहु, क्या बोले? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब ढोल बजाने को हराम करार दिया है ना। तो हमारे किस आलिम ने कहा कि ढोल बजाओ? हाँ? हमारे किस आलिम ने कहा है कि ढोल बजाओ? आपके आलिम ढोल बजाने का है? किस आलिम ने कहा है हमारे ढोल बजाओ? अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ढोल बजाना हराम है, हराम। अच्छा, तो हमारे किस आलिम ने कहा है कि ढोल बजाओ? आप तो ढोल बजा रहे हैं। कौन सा आलिम ने कहा है? कौन बजा रहा है ढोल? मैं कह रहा हूँ भाई ढोल बजा रहे हैं आप। तुम्हारे कहने से थोड़ी हो जाएगा। अच्छी मुहर्रम मनाते हैं, मुहर्रम में ढोल बजाते हैं। हम सुन्नी हनफी बरेलवी नहीं करते। हाँ? हम सुन्नी हनफी बरेलवी नहीं करते। जो मसला के अहले सुन्नत, मसला के आला हजरत से ताल्लुक रखते हैं, जो अपने आप को सुन्नी हनफी बरेलवी कहते हैं, हाँ वो नहीं करते। और जो खाली नाम के सुन्नी है, हाँ ठीक है, अच्छा। वो करें तो करें, जो आला हजरत को नहीं फॉलो करते, ठीक है। जो आला हजरत को फॉलो करता है वो ये ढोल ताशा गाजा इन सबसे दूर रहता है। अच्छा हाँ, बहरहाल आप उसी पे चलिए कि जश्न ईद मिलाद। एक मिनट, बकवास करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है इमाम साहब। 11 बजे तुमने रात में कॉल किया, मैं रात में किसी बदमजहब से बात नहीं करता हूँ, ठीक है। ठीक है। आपका एतराज ये है कि हमने जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाई, हाँ ठीक है, तो आपके पेट में थोड़ा सा दर्द हुआ, तो उस दर्द की बिना बता दीजिए वो दर्द क्यों हुआ? दर्द हमको इसलिए हुआ कि आप डीजे बजा के डीजे के सामने डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कपड़ा फाड़ रहे हैं, गाड़ी टकरा रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक मिनट, हाँ बताइए ये कौन से हदीस? एक मिनट। ये जो आपने झूठ बोला है कि डीजे बजा के नाच रहे हैं, गाना गा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरा एतराज है, मैं सवाल तो आपसे कोई और करता, मगर अब सवाल वो नहीं करूंगा, अब सवाल आते ही के जैसा करूंगा। अब सुनिए, देखिए इमाम साहब, हाँ आप इमामत करते हो, खामोशी से प्यार से मेरी बात को सुनो, वरना आप मुझसे नूर हसन से बात कर रहे हैं, आपकी इज्जत का तहस नहस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आपकी इज्जत नीलाम हो जाएगी। सुनिए, नूर हसन को, हाँ, नूर हसन को वही कॉल करता है जिसकी इज्जत नीलाम होनी होती है। बहरहाल सुने, चुपिए, मैंने आपकी बात को खामोशी से सुना, प्यार से सुना। अब मेरी बात का जवाब दीजिए। आपकी तब्दीली जमात जाती है, 3 दिन के लिए निकलती है, 10 दिन के लिए निकलती है, महीने भर के लिए निकलती है, 3 महीने के लिए निकलती है, 4 महीने के लिए निकलती है, 6 महीने के लिए निकलती है, साल भर के लिए निकलती है। कुरान और हदीस में इस तरह से कहाँ तायुन है जिस तरह से आपके तब्दीली जमात वाले जमात को निकालते हैं। और फिर दूसरी बात, मस्जिदों में सोते हैं, मस्जिदों में पादते हैं, मस्जिदों में एहतराम कर देते हैं, ठीक है। एक मिनट, मस्जिदों का अदब नहीं है इन लोगों को। पहले एक मिनट बताइए भाई, हाँ, तबलीगी करना क्या हलाल है या हलाल पर ये बताइए। तुम लोग तबलीग जो करते हो वो अबू जहल वाली तबलीग करते हो, मुसलमानों का ईमान लूटने निकलते हो। अच्छा हाँ, और जो हम मुसलमान तबलीग करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के ईमान की हिफाजत होती है। लेकिन आप सुनिए एक बात, पहले मेरी बातों का जवाब दिया जाए कि मस्जिदों में जो तुम एहतराम करते हो, तुम्हें जो गुस्ल की हाजत पेश आ जाती है, तुमसे मस्जिद का अलग नहीं सोया जाता, मस्जिद में पाटते हो पूरी रात, ढर 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 ढर। एक बात बता रहा हूँ आपको, जवाब दीजिए पहले इस बात, सुनिए, जो मैंने कहा है उसका जवाब दीजिए, आगे बिल्कुल बोलना ही नहीं है।
इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। 3 दिन, 10 दिन, महीना भर, 2 महीने, 3 महीने, इसका तायुन कहाँ है कुरान और हदीस में कि इस तरह? मैं दे रहा हूँ भाई, इसका जवाब दे रहा हूँ मैं आपको। दीजिए। इसके लिए भाई देवबंद से भी फतवा आया। क्या फतवा आया? कि जो लोग किला में जाएगा या 3 दिन, 10 दिन, 40 दिन, 4 महीने, 1 साल के लिए, वो उस मस्जिद में रहे कि जिस मस्जिद में रूम अलग से हो उसके लिए। ठीक है, वो सुन रहा हूँ, सुनाइए। मगर उसके बावजूद तुम्हारे लोग मदरसा होने के बावजूद मस्जिद में सोते हैं। लेकिन सोते हैं भाई, वो मजबूरी है। काहे की मजबूरी है? जब मदरसा बराबर में है तो मजबूरी काहे की है? अब एक बात सुनिए, नहीं, मजबूरी किस चीज की है? जब मदरसा बराबर में है मजबूरी किस चीज की है? कि इस्लाम होते हुए किसी को देखे हैं आप? मेरा खुद एहतलाम हुआ है, मेरा खुद एहतलाम हुआ है। धोए थे कि नहीं? मस्जिद में। आई धोए थे कि नहीं? अबे उन हरामियों ने बताया है कब? कुछ सिखाया है कब? वो खाली ये कह देते हैं किसी को नहाने की जरूरत पेश आ जाए, किसी को नहाने की हाजत पेश आ जाए तो अकेले मत जाना, किसी को साथ में उठाना, किसी साथी को उठा के लेके जाना। तो उठाया ना? तू उठाया था क्या? हाँ मैंने उठाया। तो क्या हुआ? फिर वही बात। अबे कमीनों, जब मस्जिद में इस्लाम होगा तो क्या होगा? अबे मस्जिद धोना चाहिए ना बेवकूफ, मस्जिद। अबे कहाँ धोई कमीने? कहाँ धोई उन्होंने? कहाँ धोई मस्जिद? जब तुम बताओगे तब ना कि मस्जिद। अबे कमीने, किसी का भी हो सकता है, और तुम साले बदतमीजी करते हो, उसमें जिनाकारी भी करते हो। कौन? बराबर ठीक करते हैं। हमारे बिलासपुर की मस्जिद है, साले इन कमीनों ने उस पर कब्जा कर लिया था। इतने कंडोम निकले उस मस्जिद में, माज़अल्लाह। साले उस मस्जिद को पता नहीं ये चौपाल बना के रखे हुए थे, पता नहीं क्या करके रखे हुए थे। अबे कंडोम का क्या करते हो तुम? भाई मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आवाज से। बिलासपुर की मस्जिद में हजरत क्या बताऊं, कहने के और लोगों को सुने। अच्छा एक मिनट, देखिए मैंने सवाल किया तो मैं गुमराह कर रहा हूँ? सुने एक मिनट, तुमने सवाल किया था कि तुम, देखिए भाई सुनिए, मैं गुमराह नहीं। अरे देखो भाई, प्यार मोहब्बत से बात करो वरना कॉल काट के चले जाओ, इज्जत को बचाओ। नूर हसन को वही कॉल करता है जिसकी इज्जत नीलाम होनी होती है। जिसकी इज्जत नहीं, जिसकी इज्जत है वही कॉल। बहरहाल चलिए ये बताइए हजरत इमाम साहब, एक मिनट, इमाम साहब हैं आपसे एक सवाल कर लूँ छोटा सा? बोलिए। अच्छा हजरत एक मिनट, छोटा सा आपसे एक सवाल है कि ईशा की 4 सुन्नतें पहली बंदा पढ़ रहा है, कायदा उला में कायदा अखीरा समझकर वो तशहुद के बाद दरूद भी पढ़ रहा है। अच्छा। फिर उसे ध्यान आया कायदा अखीरा नहीं कायदा उला है, खड़ा हो गया। अच्छा ठीक है, यानी कायदा उला में तशहुद के बाद दरूद शरीफ भी पढ़ा, फिर वो खड़ा हो गया। ठीक है। उसने तीसरी रकात पूरी करी। ठीक है। चौथी रकात में इमाम साहब आ गए। अच्छा। उधर जमात खड़ी हो गई, इधर ही अपनी चौथी रकात पूरी कर रहा है। अच्छा। बगैर सजदा साहब किए, सलाम फेर के, बगैर सजदा साहब किए सलाम फेर कर जमात में शामिल हो गया। अच्छा। उसकी सुन्नतें हुई या नहीं हुई? देखिए भाई, दरूद शरीफ जो पढ़ा है वो पढ़ना सुन्नत है। ठीक है। अच्छा वो सुन्नत में ही पढ़ा है, सजदा तो नहीं होगा। ठीक है जी, सजदा तो नहीं होगा, नमाज हो गई उसकी। नमाज हो गई। मसला समझा है आपने? मसला समझा है? मसला मैं समझ गया। देखिए आप जो कह रहे हैं कि कायदा उला में तशहुद के बाद दरूद शरीफ पढ़ लिया। ठीक है। उसके बाद तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया जी। तीसरी रकात भी मुकम्मल कर लिया जी। अब चौथी रकात में बैठा जी। चौथी रकात बैठा, जैसे इमाम साहब आ गया, नमाज खड़ी हो गई इधर। ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, सजदा सो किया नहीं, सलाम फेर लिया है ना? यही कह रहे हैं ना आप? जी जी जी। देखिए भाई, दरूद शरीफ पढ़ना क्या है पहले ये बताइए हमको। अच्छा ये बताइए, एक मिनट पहले ये बताइए, दरूद शरीफ पढ़ना क्या है नमाज में, पहले बताइए। सुन्नत है।
सुन्नत है। अगर सुन्नत पढ़ ही लिया तो सुन्नत में कौन सी फायदा से होगी? अच्छा, एक मिनट हजरत। असर के 4 रकात नमाज फर्ज पढ़ रहा है बंदा, अच्छा ठीक है? हाँ असर के 4 रकात नमाज फर्ज पढ़ रहा है, असर के हाँ पढ़ रहा, या जोहर के पढ़ रहा है। अच्छा फिर उसके साथ भी यही मामला पेश आया। अच्छा जी, तशहुद के बाद दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, हाँ फिर ख्याल आया, फिर खड़ा हो गया, अच्छा 4 रकातें पूरी करी, बगैर सजदा साहब किए, सलाम फेर दिया। अच्छा बताइए दरूद शरीफ कहाँ तक पढ़ा? अरे हजरत सुनो तो, दरूद शरीफ मुकम्मल पढ़ा या थोड़ा सा पढ़ा, बोले बताइए। फिर वही बात यार हजरत, घुमारे वो बात को कि पूरा पढ़ा क्या अधूरा पढ़ा। मतलब अल्लाहुम्मा सल्ली अला इतना पढ़ा क्या पूरा पढ़ दिया? उसने आधा दरूद शरीफ पढ़ दिया, ऐसे करके मानो। आधा? हाँ अगर भाई देखिए आधा अगर पढ़ दिया फर्ज नमाज में, हाँ, तो उसकी ताखीर हो गई, ठीक है? उसके ऊपर सजदा तो वाजिब है। क्या चीज? उसके ऊपर सजदा तो वाजिब है, क्योंकि ताखीर हो गई ना, ताखीर की वजह से। क्या हो गया? अगर आप चले थोड़ा जोर से बोलो भाई हजरत। मैं जोर से बोल रहा हूँ। हाँ ये शोर किधर से है? शोर किधर से है? तशहुद के बाद हाँ, दरूद शरीफ कहाँ तक था ये पढ़ के हमको बताइए। आधा दरूद शरीफ पढ़ दिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, यहाँ तक पढ़ दिया। चलिए ऐसे करके मानिए। हाँ तो इससे जो शख्स नमाज पढ़ रहा है, हाँ, उसके ऊपर सजदा तो वाजिब हो गया। अच्छा हाँ कि बोले क्यों? हाँ, इसलिए कि भाई सजदा तो इसलिए वाजिब है, फर्ज नमाज में उसकी ताखीर हो गई। क्या ताखीर हो गई? ताखीर ना, हाँ ताखीर, इसलिए उसके ऊपर सजदा तो हुआ। अच्छा। और ईशा की जो सुन्नतें मैंने बताई हैं, हाँ ईशा की जो सुन्नतें बताई हैं, सुन्नत, हाँ मैंने जो ईशा की सुन्नतें बताई हैं, हाँ वो नमाज हो गई या पढ़ना पड़ेगी दोबारा? अगर सजदा तो नहीं किया है, हाँ, तो फिर दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। अगर सजदा तो कर लिया तो फिर नमाज हो गई। अभी तो आप कह रहे थे नहीं सब नहीं किया, अभी तो आप कह रहे थे कि नमाज हो गई। अरे भाई सुन्नत की बात कर रहा हूँ, अभी आप फर्ज की बात कर रहे हैं। हाँ हजरत, मैं सुन्नतों को तो कह रहा हूँ कि ईशा की 4 सुन्नतें जो पढ़ी थी, वो सर की ईशा की 4 सुन्नतें हुई कि नहीं हुई? वो 4 सुन्नतें हो गई भाई। फर्ज में देखिए, फर्ज में वाजिब है ना, है? फर्ज में अगर ताखीर हो गया। अच्छा, हाँ बोलिए, क्या बोले? आप बोले। फर्ज में ताखीर हो गई तो सजदा साहब वाजिब है। हाँ वाजिब है। और अगर सुन्नतों में ताखीर हो गई, सुन्नतों में अगर तशहुद के बाद दरूद शरीफ पढ़ लिया तो उसमें तो कोई बात नहीं है, भूल से पढ़ लिया। सुन्नतों में नमाज हो जाएगी। हाँ हो जाएगी। मसला मालूम है पूरा? हाँ बिल्कुल मालूम है। अच्छा। अच्छा भाई मैं आपको एक सवाल कर रहा हूँ। हजरत एक मिनट में आपको सवाल कर रहा हूँ। जोहर की 4 सुन्नत है, हाँ उसमें भी यही मामला हो गया। अच्छा, तो वो भी हो गई। अरे भाई सुन्नत देखिए, असर की सुन्नत और जोहर की सुन्नत में फर्क है, ठीक है? असर की नहीं कह रहा हूँ, ईशा की सुन्नतें हैं। ईशा की सुन्नत है, ईशा की सुन्नत है और जोहर की सुन्नत में फर्क है भाई। अच्छा। हाँ क्या फर्क है? फर्क ये है कि अगर आप जोहर की सुन्नत छोड़ देंगे, हाँ, तो अगर जैसे नमाज की टाइम अभी 5 मिनट पहले मस्जिद आप चले गए, ठीक है? हाँ, अगर आप देखें 5 मिनट है, 4-5 किलो बैठ जाता है। अगर फिर बाद में भी आप नहीं, अरे यार ये शोर किधर से है? शोर खत्म करो यार, मजा नहीं आ रहा, किरकिरा मजा हो गया भाई। हजरत रमजान भाई, हाँ बोलिए। आप अपनी तरफ से जरा म्यूट करिए। उधर की आवाज थोड़ी म्यूट करें, जो उधर से आवाज नहीं आए। बोलिए क्या हजरत? आपकी तरफ चिल्ला रहे हैं जनाब। इमाम साहब आपकी तरफ से आ रहा है शायद, हैं? आपकी तरफ से शोर है। रमजान भाई, बोले भाई। रमजान अली भाई,
आपकी तरफ से म्यूट करिए जरा हजरत। भाई मेरे तरफ से कोई नहीं है भाई यहाँ पे। हैं? मैं तो यहाँ कह रहा हूँ, आवाज समझ में नहीं आ रही इनकी, इमाम साहब की। मैं कह रहा हूँ अकेला सोया हुआ हूँ रूम पे। हाँ भाई बोलिए भाई। जी, मैं ये कह रहा था कि ईशा की 4 सुन्नतें, जोहर की 4 सुन्नतें और असर के 4 फर्ज, ठीक है, ये 3 की बात हुई। पहले बता रहा आपको जी, कि ईसा की सुन्नत है और जोहर की सुन्नत है में फर्क है भाई। अच्छा, क्या? फर्क ये है कि अगर आप जोहर की सुन्नत अगर जानबूझ कर छोड़ देंगे ना, हाँ, तो आपको गुनाह मिलेगा आपको, ठीक है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, गुनाह की बात नहीं कह रहा हूँ भाईजान। सुनिए, 1 मिनट सुनिए। ये जोहर की सुन्नत है, सुन्नत मौकीदा है, ठीक है। ठीक है। और ईसा की जो 4 का सुन्नत है पहले वाला, हाँ, वो गैर मौकीदा है। अगर आप ठीक इसको है। पढ़ेंगे सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं। ठीक है जी, लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, अगर छोड़ेंगे तो गुनाह मिलेगा। जी। इसमें फर्क मगर है भाई। हाँ, मगर जोहर की 4 सुन्नतों में यही मामला पेश आया, अच्छा, और बगैर सजदा साहब किए सलाम फेरा, हाँ, नमाज हुई, वो 4 सुन्नतें हो गई या नहीं हुई? नहीं, इसमें नहीं होगा, नहीं होगी। नहीं। और ईशा वाली ईशा वाले भी नहीं होगी, सजदा से करना पड़ेगा। सजदा साहब करना पड़ेगा। हाँ, क्यों? हाँ क्यों? भाई, मैं बताया ना कि फर्ज नमाज में ताखिर नहीं होना। अच्छा, फर्ज नमाज में ताखिर नहीं होना। नहीं होना। अच्छा, और सुन्नतों में ताखिर हो जाए तो? अगर गैर मौकीदा में ताखिर हो गया, थोड़ा बहुत तो चल जाएगा। थोड़ा बहुत चल जाएगा। लेकिन अगर सुन्नत जो जोहर की सुन्नत है जी, अगर इसमें होगा तो नहीं चलेगा भाई। अच्छा, नहीं चलेगा। नहीं। और ईशा में चल जाएगा? हाँ, ईशा में तो चल जाएगा कि वो गैर मौकीदा है वो। अच्छा, वो क्यों चलेगा, जरा वो थोड़ा बता दे, क्यों चलेगा? क्योंकि वो गैर मौकीदा है ना, थोड़ा बहुत सवाब मिलेगा। अच्छा, और अगर बंदा डेली ऐसा करे तो नमाज होगी कि नहीं होगी? नहीं, डेली अगर जानबूझ के करे तो भाई नहीं होगी। मसला पढ़ के दोबारा से बताइएगा, ठीक है? करा जानबूझ कर अगर करेगी। अरे भाई, कोई आदमी लड़की है या लड़का है करेगा। जी, बोले। आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि एक बंदा अगर डेली ऐसा करे, समझ रहे हजरत? हाँ, सुन रहा, बोलिए। डेली का उसका यही मामूल हो कि ईशा की नमाज में वो तशहुद के बाद दरूद शरीफ भी पढ़े। अच्छा, हाँ, तो नमाज होगी या नहीं? अच्छी बात। जो बंदा नमाज पढ़ रहा है, हाँ, वो जाहिल है या आलिम, पहले ये बताइए। आलिम है। आलिम है जी। देखिए, आलिम तो ऐसा कर ही नहीं सकता भाई। चलिए, जाहिल है। जाहिल है तो उसको अगर वो पढ़ भी लिया इसके लिए चल जाएगा। अख्तर भाई, बोले क्यों यार थोड़ा रहम खा लो यार। हाँ, बोले। हाँ, तो थोड़ा रहम खा लो यार, हल्का सा। यहाँ तक आवाज आ रही है खूब ज्यादा यार। जी हाँ, बोले भाई। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आलिम है। अच्छी भाई सुनिए, हैं? आपने मुझे 3 सवाल कर लिए, ठीक है। अरे 3 सवाल कहाँ किए, वही एक सवाल चल रहा है यार जनाब, आप ही घूम रहे हो चारों तरफ। 3 सवाल कर लिए, मैं एक सवाल देखिए, हाँ ठीक है, आप कीजिएगा, पहले इसको तो फाइनल करें। हाँ, बताइए। आलिम है, हाँ, और वो यही उसका मामूल है, नमाज होगी या नहीं होगी? क्या मामूल है? यही मामूल जो मैंने आपको बताया, दरूद शरीफ के तशहुद के बाद दरूद शरीफ पढ़ना। नहीं, अगर वो भूल से अगर कर दिया, भूल से नहीं, जानबूझकर तो भाई नहीं होगी। मसला पढ़ो पहले, ठीक है? क्यों? मसला पढ़ो पहले, मसला क्या पढ़ूं? पहले इसका मसला पढ़ना, फिर उसके बाद मुझसे बात करना। आप कौन सी किताब से बता रहे हैं, हमको बताइए किताब की नाम। मैं जिस भी किताब से बता रहा हूँ, आप पहले अपने आलिमों से मसला पूछें, मुफ्ती साहब को लाइन पे लें, फिर उसके बाद बात करें। इमाम साहब, अगर नमाज में कोई गलती हो गई तो क्या करोगे? हाँ? अरे यार थोड़ा कम कर लो ना यार, अब मतलब ज्यादा बढ़ा जा रहे हो। हेलो, देख रहे हो यार, नमाज में अगर कोई गलती हो जाए सौदा तो करेंगे।
तो ईशा में अगर आपने यही मामूल बनाया तो नमाज नहीं होगी। इस्लाम अगर जानबूझ कर ये मामूल हर रोज बनाएंगे तो कहाँ से नमाज होगी भाई। जनाब गैर मौक़िदा सुन्नतों में हाँ तशहुद के बाद दरूद शरीफ पढ़ना, दुआ पढ़ना ये अफजल है, क्योंकि वो गैर मौक़िदा सुन्नतें हैं, मौक़िदा सुन्नतें नहीं है। कौन ईशा का? जी हाँ अच्छा जी। पहले यार मसला पढ़ो इमाम साहब। आप चारों तरफ घूम रहे थे, ठीक है, ये काम सुनिए। आप चारों तरफ घूम रहे थे। अच्छा कभी कह रहे थे नहीं होंगी, कभी कह रहे थे हो जाएंगी। आपने पहले कहा हो जाएंगी, नहीं ठीक है, फिर उसके बाद अरे जनाब आपने कहा था पहले हो जाएगी, फिर मैं आपको पूछने वाला था किस वजह से होगी, तो फिर आपने कहा कि वो गैर मौक़िदा सुन्नतें हैं। फिर मैंने आपसे फर्ज का पूछा, ठीक है, फर्ज में हो जाएगी बताइए। नहीं होगी, फर्ज में भी नहीं होगी और मौक़िदा सुन्नतों में भी नहीं होगी। सजदा साहब वाजिब है, सजदा साहब वाजिब है, मगर गैर मौक़िदा सुन्नतों में क्या चीज? मैं वही बात कहा हूँ ना कि जो होगी सुन्नत है और ईसा की 4 रकात फर्ज में नहीं होगी, जनाब मौक़िदा है उसमें हो जाएगी। जनाब आप कह रहे थे कि कभी कभी हो जाएगी, थोड़ी बहुत हो जाएगी। आपको खुद मसला ठीक से नहीं मालूम है जनाब, आप तो वो क्या बोलते हैं कयास लड़ा रहे थे। अरे शायद नहीं भाई सुनिए जनाब अब ये सब बातें खैर अच्छी भाई छोड़ो, आप दोबारा से इस मसले को पढ़ें, ठीक है, फिर उसके बाद बात करिएगा। जी कोई बात नहीं है, बहरहाल आपके बड़े बड़े मुफ्तियों से मैं ये बात कर चुका हूँ, है ना, तो आपके बड़े बड़े मुफ्ती घूम जाते हैं। खैर अब मैं इसीलिए मैंने आपको बता दिया ताकि आपके मुफ्ती इस चीज को समझ लें, देख लें, ठीक है। सुनिए बताएं। इससे बात किया है आप तो आपके यूट्यूब में देख रहे हैं कि मौलाना तारिक गयावी है, मौलाना तारिक जमील, मौलाना तारिक जमील साहब भी है पाकिस्तान के, और मौलाना तारिक गयावी भी है, हाँ उसका भी तस्वीर लगाए रखे हैं। क्या मौलाना तारिक गयावी से टक्कर ले पाएंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बात कराइए मेरी ताहिर गयावी से। नंबर है आपके पास? भाई देखिए मैं आपको बुरा नहीं मानिएगा ना, बुरा नहीं मानूंगा, ताहिर गयावी का नंबर लीजिए, मुझे दीजिए, मैं बात करूंगा। ताहिर गयावी ऐसे मौलाना बड़े बड़े, अरे भैया जैसे भी है, मैं कह रहा हूँ आपके कुतुब है, पूरी दुनिया के सबसे बड़े आलिम है ताहिर गयावी, ठीक है, आप मेरी बात कराइए आप, और आप टॉपिक चुन लीजिए किस टॉपिक पर बात कराएंगे। हाँ? किस टॉपिक पर बात कराएंगे वो टॉपिक चुन लीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, अच्छी किस टॉपिक पर बात कराएंगे बोले। ठीक है, आप हमको जिस वक्त मिलेगा अच्छा तो बात करेंगे। तो ताहिर गयावी साहब का नंबर है आपके पास? हाँ मिल जाएंगे, क्या दिक्कत है। तो दे दीजिए मुझे। नहीं आपको नहीं दूंगा भाई, क्यों दूंगा, आप उसको परेशान करेंगे बेचारे। नहीं 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 आप बहुत बड़े मुफ्ती साहब है। अच्छा तो अभी लाइन पे ले लीजिए, अल्लाह करे कि आप बहुत बड़े, अभी लाइन पे ले लीजिए, अल्लाह करेगा आपको और बहुत बड़े मुफ्ती बनाए। चलिए भाई आप लोग तो बुजुर्ग है, हम लोगों के लिए दुआ कीजिएगा, हम लोग तो गुनाह के समुंदर में डूबे हुए हैं, ठीक है भाई। आप तौबा कर लीजिए, देवबंदियत से गुनाहों के समुंदर से निकल जाइए। तौबा करेंगे जो बरेली में आ जाए। हाँ अरे भाई आप लेकिन बहुत बड़े बात बोल दिए। क्यों? मैंने आपको दोजख से बचाने की बात की है। दोजख से? आज भाई वाला बताइए कि बरेलवी देवबंदी जो है वो कौन सी गुनाह कर रहा है बताइए। देखिए आपके जो बुजुर्ग हैं थानवी जी, ननौतवी जी, गंगोही जी, अमेठवी जी, हाँ ये लोग बदतरीन, देखिए अब मैं क्या बोलूं, आप बुरा मान जाएंगे, अगर बुरा ना माने तो बात कहूं, लेकिन नहीं देखिए बदतरीन के बारे में नहीं बोलिए, दूसरा नंबर। इस गुफ्तगू में जनाब ने यहाँ पर कॉल कट कर दिया है। फिर बाद में जो इनसे गुफ्तगू हुई है उसमें माशाअल्लाह इस गुफ्तगू से ज़्यादा आपको कुछ समझने को मिलेगा। उसमें कुछ मालूमात के ताल्लुक़ से भी गुफ्तगू हुई है, इनकी कितनी मालूमात है, ये कितने पहुँचे हुए हैं, कितने काबिल हैं। खैर इन्होंने अपनी ज़बान से क्या क्या इकरार किया है वो आप अगली ऑडियो में ख़ुद मुलाहिज़ा फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह।